आप भी आके Thank you, DGFT sir, for those words and especially the strategic export plan that's been laid out. I would now kindly request Honorable Commerce Secretary to deliver his address. Respected Commerce and Industries Minister, Piyush Sir, my colleagues from the department, industrialists and exporters present in the room, media persons. I'm extremely happy that we are having this launch of the Vanijya Saptah at the national level by the Honorable Minister today. There is a certain history to this, which I'll just explain in a minute, why this has been organized and why is it happening in such a fashion. Sometimes we miss out the context and we keep wondering why are we here and why suddenly this importance and urgency. Two things have merged today, and that's why this event is happening. Number one, the department under the leadership of the minister has been taking a lot of initiatives. He's been pushing the department hard in multiple directions to generally improve in the limited commerce sense, improve the trade performance of India, improve exports, and results are now beginning to be seen on the ground. Last year was a difficult year, last 1.5 years, thanks to COVID, the whole world, and along with that even India, did suffer a setback in many ways. I think we were trying to protect ourselves first and ensure that we are in a good position as things improve. And I think all the hard work done under the minister's leadership over the last 2.5 years is finally beginning to show fruit in many ways. You're aware that in the last couple of months, the ROTTIP scheme, along with the notifications have been issued, applications are being taken, although it's not concerned with commerce, but it's with the same minister, and it's a nice conjunction that textiles is also now back with the Commerce and Industries Minister, which means that's one of the major export sectors. So ROSCTL has also been announced. A major step the Minister Sahab himself announced about 2 weeks ago was that all the areas of MEIS, SCIS and all other schemes amounting to over 56,000 crores are being liquidated in this financial year. And I think the portal is now open, and by 31st December everybody has been expected to apply. The Minister Sahab has also been pushing for reforming the SCZ system. And I think a lot of orders have been issued, and we are in the final stages for a couple of more things. A lot of you who are working in the SCZ are aware of that. Things like either denotification or space transfer, or things like having a partial SCZ and a partial non-SCZ for the IT sector. A lot of such things are there. Sales to domestic tariff areas, rupees sale for software. A lot of these are at the final stages, and the minister has been pushing at his level. So that gives us hope that at our level we'll be able to break through. He's also come out with the new transport marketing assistance with very enhanced subsidy for agricultural export. And similarly, an emergency transport marketing assistance scheme has been being pushed through because of the rise in container freight rates, which is also affecting people. For a few months, maybe that will provide some relief. An import monitoring system has been put in place, where on a fortnightly and monthly basis, surges in imports are being flagged, largely to see that there are production opportunities. And very soon we will go online with that, so that industrialists who want to manufacture products get to know what is there which is potentially manufacturable because of significantly high imports over the last years. In a lot of situations, people actually have no information. Once that information is available, I think that is there. So in a whole gamut of things, he's pushing the department to achieve this. And he's, of course, apart from the $400 billion goal, which all of you have been party to, all of you are working hard to fulfill. And luckily, as Bipin Menon has mentioned, the first half of the year is gone, and in 10 days you'll see the month figures of September. We will be somewhere around 49 or 50% of the target for the year, which is a very good start, because as all exporters know, the second half of the year is about 5% better than the first half. So we are hopeful that we'll actually exceed that. But the ministry is not resting with that. He set a larger goal of $1 trillion of goods exports. From 400 you take it to $1 trillion, and services exports go from about 300 billion today to about 1 trillion again by the year 27.
So in about 5 years from now, we're actually talking of $2 trillion of exports of goods and services, which will probably be the anchor and the bulwark on which this nation's growth will be there. So on one side, under the minister's leadership, we have been pushing forward. Simultaneously, the Prime Minister and the Home Minister have been indicating in forum after forum that we are in the 75th year of independence, and this shall be celebrated as Azadi Ka Amrit Mahotsav, so that it seeps into our consciousness that 75 years have passed. We should celebrate our heroes who got us independence. At the same time, this is a new India which we are constructing, so we move into the future to build a vision for a new India, and it should be something which should seep into our consciousness that India is, as a rising power, as a Vishwaguru, also performs its role in the world in all fields, not just economy, education, healthcare, everywhere. So he has been asking for us to push activities and create a mahal for this Azadi Ka Amrit Mahotsav so that it becomes a national movement. Now every department is doing it in its own way. We have been allotted 1 week, we have looked at it, and this is the week that was given. That why don't Commerce Department do something in this Azadi Ka Amrit Mahotsav? It's called an iconic week which is allotted to us. So we said, why don't we converge? Since so many initiatives are happening, and one of the biggest things is, as DGFT has said, exports happen finally from individual enterprises and individuals, and they live in states and districts. So we need to reach out backward. So we said, let's organize on a national scale a Vanijya Saptah over 7 days, beginning today, which the minister has launched, and going on till Saturday. So a lot of events have been structured. Today is the kick-off event. There has been a national essay competition which was there for college students and high school students, and the results are going to be announced, and at some point later the minister will probably be giving the certificate. There are 5 regional competitions, East, West, North, South and Northeast, and 3 winners are there in each. And they are basically writing about India as a rising economic power, what Azadi means in terms of economy for us and how do we go ahead. So that's the one. Today and tomorrow, in all the states and union territories of India, without exception, we'll have to see, even the most difficult states are actually come on board. They are holding state level events of large nature. In UP, for example, there is one going on in Lucknow tomorrow, and this is being done by very senior people, chief ministers. Ministers are going from Delhi, where there will be 2-day state level exhibitions and seminars, in a way what you are familiar with, calling you are having buyer-seller meets, exporters, buyers, they all get to meet, exhibitions are being held. In some states, ambassadors are being invited as potential buyers. So, in terms of market creating events are happening. On the 3rd day, 21, 22, 23rd, which is on Thursday, there is all the SEZ are doing a Swachhata Abhiyan to do a cleaning up. And we are not only the 7 government SEZ, there are over 260 SEZs in the country. So there will be a clean-up campaign, in a way remembering Mahatma Gandhi ji. The next 3 days, that is 24th, 25th, 26th, everywhere we are having functions in 700 districts in the country. It will be a fair of what are all the products made in the district and what of that can be exported. So it will be much smaller in scale compared to the state level, but it brings everybody into the picture. We have been providing assistance from Commerce Ministry to organize all that. Whether it's a big district or whether it's a small district, we're given a small amount of money. There's an immense amount of enthusiasm. We're already seeing enthusiasm in the first 2 days for the state level function. There is a similar level of enthusiasm being built up at the district level also, and we are hopeful with this we will fulfill the national ambition of Azadi Ka Amrit Mahotsav in our context of Vanijya. Thank you very much. Thank you, sir, very much for those very encouraging words. The various export promotion incentives that are now available or have been released. Especially, I think many of our units here would be very much interested in the reforming of the SEZs, because that's been one of the agenda that they've been flagging with us, and also the entire Saptah itself. And again, I would like to say that Noida SEZ is very honored to have been associated with this opening of the nationwide Vanijya Saptah. After this, I would now kindly request Honorable CIM to deliver his keynote speech on this August function. Thank you, sir. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Menon.
Development Commissioner of Noida SEZ, my senior colleagues, Shri BVR Subramaniam, Commerce Secretary, Shri S. Kishore, Additional Secretary, Shri Amit Yadav, the Director General of Foreign Trade, colleagues from industry, Shri Bhuvnesh Seth, Chairman of the EPCEZ, CES, which looks after all the interests of the SEZs, friends from the Noida SEZ and other stakeholders from the export ecosystem, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. Gives me immense pleasure to be in Noida at the opening of the Vanijya Saptah celebrations. I call it a celebration because today there is a completely new mood amongst the nation, amongst the people of India, and amongst our exporters. And that comes from confidence. The confidence that we are fast progressing towards an Atmanirbhar Bharat. We are fast progressing towards global leadership in several areas of engagement. And this week is being seen in the context of where we see India and our foreign trade, both international exports of goods and services, import of products wherever necessary, and what our vision is for the future. वास्तव में साधारणतः इन सब कार्यक्रमों का उद्घाटन दिल्ली में ही होता है। देश की राजधानी है तो दिल्ली से एक स्वाभाविक तौर से सब कार्यक्रम वहाँ से शुरू किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमें कई बार कहते हैं कि देश सब राज्यों में बसा हुआ है और राज्यों को जितना हम मजबूत करें, राज्यों के साथ जितना हमारा संपर्क बढ़े, उतना ज़्यादा देश की प्रगति में और तेज गति आएगी। दिल्ली का अपना महत्व है, दिल्ली में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं भी करूंगा कार्यक्रम, लेकिन मुझे लगा कि आज का उद्घाटन समारोह तो देश का जो सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम श्रेणी का आज उत्साह यहाँ पे देखने को मिलता है। कई बार कहते हैं उत्तर प्रदेश इज द लैंड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पोटेंशियल, एंड today I can say also the land of unlimited pride. We have seen Uttar Pradesh progressing extremely well, extremely fast. A lot of work happening on the development agenda, rapid rollout of huge infrastructure initiatives, an excellent thrust to industrial development, a big focus given to the law and order situation, transparency in government working, which to my mind is a very essential component of trade, commerce, industry to succeed. I am sure all of you are aware that in the last year's ease of doing business rankings that were carried out across the states of India, Uttar Pradesh rank jumped from 12th in 2019 to 2nd within a span of 12 months. और मुझे लगता है इस वर्ष तो शायद जिस प्रकार का काम किया गया, देखा गया है, जिस प्रकार से सरलता लाने की कोशिश करी है सरकारी व्यवस्थाओं में, हो सकता है कि रैंक और आगे चले जाए। और मैं समझता हूं कि हमारा जो भी कार्यक्रम केंद्र से भी हम सजेस्ट करते हैं, केंद्र से भी कोई कार्यक्रम को हाथ में लेते हैं, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश उसको अपनाता है, हाल में जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और फिर वन प्रोडक्ट टू बी चोजन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, इस कार्यक्रम को बढ़ाने की बात थी और एक्सपोर्ट प्रमोशन को थ्रस्ट देने की बात थी कि अब राज्य भी नहीं,
जिला को केंद्रित करके हम देश के निर्यात को बढ़ाएं, उसमें भी जो उत्साह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जिस प्रकार से तेजी से उत्तर प्रदेश में सब जिलाओं से फीडबैक आया कि हमारा ये प्रोडक्ट, फिर ये झगड़ा शुरू हो गया कि एक प्रोडक्ट में हम अपने जिला को सीमित ही नहीं कर सकते, तो हमें उसको भी थोड़ा नचीला करना पड़ा कि ठीक है भाई, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो हम उसको भी रिकग्नाइज करेंगे, सीमित भी नहीं करेंगे। जैसे अमरोहा है, अमरोहा में ब्रास, एल्यूमिनियम, आयरन स्टील के हैंडीक्राफ्ट्स तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में बताया गया कि वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही बदायूं में इसेंशियल ऑयल के बारे में कहा गया कि बहुत प्रमुख यहाँ का प्रोडक्ट है, लेकिन साथ ही साथ मस्टर्ड सीड्स में भी हमारा काम बहुत अच्छा है। तो चाहे वो किसानों के क्षेत्र में विषय हो, चाहे वो एमएसएमई के क्षेत्र का विषय हो, चाहे उद्योग का, बड़े उद्योग का विषय हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग से संबंधित विषय हो या हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स हो, अन्य चीज़ों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने पहले आइडेंटिफाई करके फिर एक एक विषय के ऊपर गहराई में जाके कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसकी चिंता की। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी पूरी टीम को, और उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति को जो उद्योग जगत के साथ, निर्यात के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने सब ने मिलके उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया, उत्तर प्रदेश में ये तय किया कि हम तेज गति से यहाँ पे उद्योग को लाएंगे, उद्योग को प्रोत्साहन देंगे, उद्योग का विस्तार तेज गति से करेंगे। उसके लिए जो जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ चाहिए, चाहे वो इंसेंटिव पॉलिसी हो, ज़मीन उपलब्ध करने की बात हो, बिजली उपलब्ध करने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अच्छी सड़कें, रेल कनेक्टिविटी, नए एयरपोर्ट का विस्तार करना, और सबसे ज़रूरी जो मैंने पहले भी जिक्र किया, कानून व्यवस्था को इतना सख्त बना देना कि उद्योग जगत को डरने की कोई बात ही ना हो। मुझे आज भी याद है, मैं जब 2017 में चुनाव के दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया, तो मेरा प्रचार लखनऊ से शुरू होना था और फिर 2-3 और जिलों में जाना था। और उसके एक दिन पहले ही लखनऊ में एक व्यापारी की हत्या दिन दहाड़े दुकान पे गल्ले पे बैठे हुए हुई थी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद साहू नाम था, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत याद है। कोई गूगल करेगा तो ख्याल में भी आ जाएगी एग्जैक्ट डिटेल्स। और मैं फिर अपना प्रचार छोड़ के, मेरा दिल भी नहीं करा प्रचार करने के लिए, मैं उनके परिवारजनों को मिलने गया और उन्होंने जो बताया, जिस प्रकार की स्थिति थी 2017 के पहले, दोपहर के समय एक पुलिस थाना 100 मीटर दूर और व्यक्ति आके गले के ऊपर गोलियां मार के व्यापारी को चले जाए, ऐसे डर के माहौल में मैं नहीं समझता हूं कि कोई व्यापार को बहुत गति मिल सकती है, व्यापार में कोई एक्साइटमेंट या इंटरेस्ट आ सकता है। योगी आदित्यनाथ जी ने गत 4-4.5 सालों में जिस प्रकार से वातावरण को सुधारा है पूरे उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूँ आप सब ने उसको महसूस किया होगा, आप सब ने उसका ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट देखा होगा कि अच्छी कानून व्यवस्था होने से कैसे व्यापार और उद्योग को भी बल मिलता है। ये जो वाणिज्य सप्ताह बनाने की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी,
इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ के अगर हम देखें तो वास्तव में ये एक तरफ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 75 वर्ष आज़ादी के, पर दूसरी तरफ थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का भी समय है। क्या हुआ 75 वर्षों में, क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई, क्या हमारी लर्निंग्स है, क्या सीखने को मिला 75 वर्ष की आज़ादी में, किन चीज़ों में हम थोड़े पीछे रह गए, जिस पे हमें और आगे चिंता करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे का क्या रास्ता नापना है, हमें आगे क्या व्यवस्थाएं बनानी है, सुधारनी है, किस प्रकार से हम आगे के अगले 25 वर्ष देखते हैं कि जब 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे भारत की आज़ादी के, तब के भारत का दृश्य क्या है, उस पर भी हम सबको चिंता करनी है, हम सबको उसके बारे में भी विचार विमर्श करना है। सरकार को इन सब चीज़ों में जन भागीदारी के साथ ही, आपके साथ ही चर्चा करके, आपकी अनुभवों का लाभ लेते हुए अगले 25 वर्ष का रोड मैप बनाना है। और जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक आत्मनिर्भर भारत जन आंदोलन में नहीं बन पाएगा। और अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो मैं समझता हूं सरकार हो, उद्योग हो, राज्य सरकारें हो, राज्य के अलग अलग इकाइयां हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्यों ना हो, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री, एमएसएमई, हमारे किसान, कामगार, मजदूर, हमारे शिक्षा की संस्थाएं, सबको मिलके संयुक्त रूप से एक आगे के देश का चित्र बनाना पड़ेगा। और उसके हिसाब से हम सबको अपना अपना योगदान उस उज्जवल भविष्य के लिए देना, मैं समझता हूं हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम इसमें पूरी तरीके से झुक जाएं। ये मौका है युवा पीढ़ी को भी प्रोत्साहन देने का, फिर एक बार उनमें उजागर करना वो देशभक्ति की स्पिरिट जो आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोविड महामारी में तो हमने सबने महसूस किया आत्मनिर्भर भारत कितना अहम भूमिका रखता है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के भविष्य के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी तो पहले से ही आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, लेकिन शायद इस कोविड महामारी के समय देश ने एहसास किया कि कितनी ज़रूरी बात थी कि देश एक प्रकार से अपना विश्वास भी बढ़ाए और अपनी आत्मनिर्भरता भी बढ़ाए। एक मौका है हम सबके सामने, हम मिलके भारत के उद्योग जगत, भारत के वाणिज्य और भारत के निर्यात के साथ ये भी प्लान करें कि कैसे हमारा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करके विश्व स्तरीय अपने देश के उद्योग को बना सकें। हाल में ही एमएसएमई की लिमिट्स बढ़ाई गई। पहले ये महसूस होता था कि वो लिमिट इतनी छोटी थी और लोग एमएसएमई से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि फिर फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी। तो लिमिट को बढ़ाया गया कि लोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट्स बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी लाएं और एमएसएमई सेक्टर का भी विस्तार तेज गति से हो। कॉरपोरेट टैक्सेस को भी कम किया गया जिससे निवेश करें लोग ज़्यादा और उसमें से जो कमाई हो उसमें टैक्स का बर्डन कम हो और उससे वो फिर एक बार अपने उद्योग को बड़ा करने में उनके पास कैपिटल उपलब्ध हो जाए, उनके पास साधन उपलब्ध हो जाए। मुझे लगता है कि अलग अलग प्रकार से अगर हम देखें तो गत 5-7 वर्षों में जो बहुत सारी अहम चीज़ों पे ध्यान दिया गया और मैं इसमें जो सामाजिक कार्य हुए उस पर भी आपका ध्यान उजागर करना चाहूँगा क्योंकि वो भी बहुत
जरूरी है अगर देश को आर्थिक स्थिति सुधारनी है और उद्योग जगत को बल देना है। आखिर अगर देश में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी तो देश आगे समृद्ध नहीं हो सकता है। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत में देने से मैं समझता हूं देश में एक नई कॉन्फिडेंस आई है कि हमारे बारे में सरकार चिंता करती है, हमारे स्वास्थ्य की चिंता सरकार करेगी। कहां इस देश में टॉयलेट तक नहीं थे, आप किधर जाओ, और हम सबने महसूस किया है कि हमें कितनी तकलीफ होती थी। लेकिन कभी किसी ने हम पिक्चरों में तो बहुत देखा करते थे, गाने बड़े दिखाए जाते थे, महिलाओं को कितनी कष्ट होती है उसके इर्द गिर्द गाने बनाए जाते थे पिक्चरों में, लेकिन समस्या हल करने के लिए किसने चिंता नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे याद है जब स्वच्छता की बात, ओडीएफ की बात लाल किले से की, तब कई लोगों ने उसको समझा ही नहीं, उसके बारे में भी बहुत ओछे वक्तव्य देने के प्रयास किए। लेकिन आप देखिए किस तेज गति से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को पूरे देश में रोल आउट किया। पहले हर स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी क्रिएट करी गई। देश में मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख स्कूलों में प्रथम श्रेणी में टॉयलेट बनाए गए। फिर देश के हर घर तक टॉयलेट बने, उसके लिए लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया, 12 करोड़ टॉयलेट बनाने में। अब आप बताइए ऐसी कौन सी सरकार आज के पहले आपने देखी है जो इतनी बड़ी राशि गरीब गांव के घरों में टॉयलेट बनाने में लगाने की कल्पना कर सकती है। और आखिर ये सब आपके कारण हुआ है। जब आप टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स का सदुपयोग हो, उस टैक्स से गरीब की सेवा हो, जो वर्षों वर्षों से वंचित रहे हैं विकास से, उनकी सेवा हो, तो मुझे लगता है टैक्स देने वाले को भी आनंद आता है। उसको लगता है कि चलो मेरा योगदान है देश की समृद्धि के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आप एक एक कार्यक्रम देख लीजिए, करोड़ों लोगों को घर देना जो बेघर हैं, जिससे हर व्यक्ति के सर पर अच्छी छत हो, हमारे बच्चों को कैंडल लाइट और सोलर लैंप या लालटेन में ना पढ़ना पड़े, या सड़क पे जाके स्ट्रीट लाइट पे ना पढ़ना पड़े, उसके लिए देश में हर घर तक बिजली पहुंचाना, और उत्तर प्रदेश में हो तो ये भी जोड़ सकता हूं बिना भेदभाव के पहुंचाना। ये भी एक बड़ा मुद्दा होता था उत्तर प्रदेश में पहले कि बिजली भी जब केंद्र सरकार योजना बनाती थी तो कुछ विशेष जगहों पे बिजली उपलब्ध होती थी, कुछ विशेष घरों को बिजली मिलती थी, सबको नहीं मिलती थी। मुझे याद है एक जमाना था जब बिजली कुछ जिलों में तो 24 घंटे जगमगाती थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, पर उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। पर आज देश के कोने कोने तक अच्छी बिजली, सस्ती बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार ने किया। राज्य सरकारों का हाथ थामा, बड़े पैमाने पे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना के तहत राज्य सरकारों को पैसे दिए। ऐसे ही महिलाओं को कठिनाई से गुजर के कुकिंग गैस नहीं होने के कारण लकड़ी, कोयला, इस सब से भोजन बनाना पड़ता था। हम सबने महसूस किया है। मैं अपने नानी के यहाँ जाता था तो वो चूल्हे पे ही रोटी सेक के आंगन में बनाया करती थी, हमें खिलाया करती थी। आज देश में हर घर को, हर महिला को 400 सिगरेट जितने धुएं से मुक्त करना रोज, जो उस चूल्हे में से आता था, और कुकिंग गैस का कनेक्शन देना,
और ऐसे अनगिनत कार्यक्रम, मैं गिनता जाऊं तो एक कार्यक्रम खत्म ही ना हो, जिससे आपके सहयोग से, आपके दिए हुए करों से देश में चारों ओर सामाजिक कार्यक्रम और उनके जीवन स्तर को सुधारने के कार्यक्रम के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। कोविड महामारी में भी बड़े पैमाने पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, मुफ्त में वैक्सीन देना, और हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 2.5 करोड़ वैक्सीन का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करके मैं समझता हूं भारत के हर नागरिक को गौरवान्वित किया है इस देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने। और ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि कोई देश का उद्योग, कोई देश का वाणिज्य क्षेत्र सफल नहीं हो सकता है जब तक देश में सामान्य समरसता भी रहे और एक बेसिक्स, जिसको कहते हैं, हर एक व्यक्ति के बेसिक्स का ध्यान रखा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भली भांति समझा, जिसके कारण एक तरफ उद्योग बढ़े, निर्यात बढ़े, लोगों को काम करने के अवसर अच्छे मिले, उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, लेकिन दूसरी तरफ समाज में हर व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे। ये दोनों कार्यक्रम को एक ट्विन पिलर्स के रूप में चला के मैं समझता हूं देश तैयार हो रहा है अपने आगे का रास्ता भारत को एक विश्व शक्ति बनाने के लिए। भारत को स्वराज तो मिला ही है, और स्वराज की जैसे लड़ाई लड़के 1947 में भारत आजाद हुआ, अब हम सबको योगदान देना है भारत की इस अगली कड़ी की लड़ाई में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, और यह विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे। देश के 130 करोड़ लोग इसका लाभ ले सकें, उत्तर प्रदेश के हर गांव तक ये पहुंचे, उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, उसके लिए राज्य और केंद्र सरकारें मिलके काम कर रही हैं। ये वाणिज्य सप्ताह एक प्रकार से हम सबके लिए कॉल टू एक्शन है, हम सबको एक बार और पुनः स्मरण कराता है कि हम सबका दायित्व है देश के भी प्रति, और स्वाभाविक रूप से आपके बिजनेस के प्रति, आपके परिवार के प्रति तो है ही, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रति भी हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हम मिलके देश को आगे लेके जाएं, देश को प्रगति के पथ पर तेज गति से लेके जाने में अपना अपना योगदान दें। संकेत बहुत अच्छे हैं, फिर एक बार भारत की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर तेज गति से आ रही है, एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है, अगस्त तक का 165 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, यह आज तक का भारत का ऐतिहासिक एक्सपोर्ट रहा है। मुझे लगता है जो लक्ष्य इस वर्ष रखा है उस पे पूरे देश भर में उत्साह भी है। हमारे सब अंतर्राष्ट्रीय मिशंस 180 देशों में इसमें बड़े योगदान देने के लिए तैयार बैठे हैं, और ऐसे माहौल में जब हमारे निर्यातकों ने इतना मेहनत की है, एक तरफ कोविड की महामारी है का दूसरा फेज इतना तकलीफ वाला रहा, शिपिंग की तकलीफ है, कंटेनर मिलने में शिपिंग कॉस्ट हाई है, कमोडिटी प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय तकलीफ चल रही है तेज गति से बढ़े हुए। इस सबके बीच हम अगर इस प्रकार का रिकॉर्ड कर सकते हैं तो आप लोग सब कल्पना लगाइए कि आगे क्या संभावना है देश के सामने, और पूरा विश्व भारत पे विश्वास करता है, भारत की तरफ देख रहा है कि हम बड़ा अहमियत वाला रोल प्ले करें, बड़ा योगदान दें विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारी माल जाए, हमारी सेवाएं जाएं। उसके लिए सरकार की तरफ से भी मेहनत चल रही है कि एक ब्रांड इंडिया पूरे विश्व में रिकग्नाइज कैसे कराना, हमारे मिशंस क्या सहयोग कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स का।
हमारे अधिकारी जो दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर हैं या डीजीएफटी जो एक प्रकार से एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम है, जिनका हमारे सब डेवलपमेंट कमिश्नर्स, एसईजेड्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सभी की जो कभी समस्याएं आती है, तकलीफ आती है, उस पर तुरंत काम करें, उसको सुलझाएं। और उसके रहते अभी अभी मैंने अपने अधिकारियों से बात करके ये कल्पना की है और उसकी आज घोषणा करना चाहता हूं कि जैसे हमने कोविड के दिनों में 24 घंटे की हेल्पलाइन चलाई थी, जिसके कारण जिसको जो तकलीफ होती थी 24 घंटे हमारे अधिकारी तट पर रहते थे, मिनटों में घंटों में विषय का समाधान करते थे और उससे व्यापार चलता रहा, निर्यात चलता रहा। मुझे अभी भी याद है पहले लॉकडाउन में मार्च 2020 की बात, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी मूवमेंट ऑफ गुड्स में और लोकल लेवल पे, पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या अलाउड है, क्या नहीं है, इसेंशियल क्या है, नॉन इसेंशियल क्या है। कई जगह गाड़ियां रोकी जाती थी। तो ये हमारे हेल्पलाइन, हमने तब 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की, तो हेल्पलाइन में कई जगह से ये समस्या सामने आई। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की और मुझे लगता है कि विद इन अ फ्यू आवर्स देश भर में ये इंस्ट्रक्शन चली गई कि कोई भी माल को रोक टोक नहीं करी जाएगी। सख्त लॉकडाउन था और जरूरी था क्योंकि देश की तैयारी नहीं थी कोविड महामारी जैसी समस्या के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इस बात को समझा कि अब वो ट्रक ड्राइवर कैसे पुलिस या डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को समझा पाएगा कि क्या इसेंशियल है, क्या नॉन इसेंशियल है। कैसे पता चलेगा ये एम्प्टी ट्रक कोई अनाज लेने जा रहा है या दवाई लेने जा रहा है जो इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल चीज के लिए जा रहा है। संभव ही नहीं है। पर यह जरूर स्वाभाविक है कि अगर कोई इतनी बड़ी महामारी के डर के वातावरण में, माहौल में अगर कोई गाड़ी या माल जा रहा है तो वो समझो इसेंशियल ही होगा। कोई इसेंशियल काम के लिए बाहर निकला है और कोई निकला ही नहीं है। तो विद इन द सेम डे इंस्ट्रक्शंस देश भर में दिए गए और सामान का आना जाना पूरी तरीके से खोल दिया गया, किसी को रोका नहीं गया, सबको सुविधा उपलब्ध हो गई और बड़ा एक समस्या का हल घंटों में देश भर तक ये मैसेज चला गया। और फिर तो मुझे लगता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने भी शायद उस शाम तक ही ये इंस्ट्रक्शन भी निकाल दिए थे। इसी प्रकार से कभी किसी एक्सपोर्टर को कोई तकलीफ ना होने पाए, इसके लिए अब हम 24 घंटे की हेल्पलाइन इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, ईमेल पे भी, मोबाइल पे भी। 24 घंटे हेल्पलाइन पे हमारे अधिकारी रहेंगे और जिस लेवल की समस्या है, जिस टाइप की समस्या है, जितनी अर्जेंसी है उस समस्या की, उसके हिसाब से वो विषय एस्केलेट होगा, जिस भी लेवल तक एस्केलेट होना पड़े, हाईएस्ट लेवल तक एस्केलेट करने की आवश्यकता पड़े। और हाईएस्ट लेवल तो आप समझते हैं इस रूम में किसके ऊपर जाके, वेयर द बक स्टॉप्स। तो हाईएस्ट लेवल तक भी अगर एस्केलेट करना पड़े तो एस्केलेट किया जाएगा और सरकार और हमारी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके सहयोग के लिए, आपके समस्याओं को हल करने पे पूरी तरीके से तट पर रहेगी। आज आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। वाणिज्य सप्ताह सिर्फ एक शुरुआत है, ये कोई एक हफ्ते का कार्यक्रम नहीं है। ये एक हफ्ता सिर्फ एक प्रकार से चिंगारी लगाने का काम करेगी। इट इज टू रीइग्नाइट आवर एंथुजियाज्म, इट इज टू ब्रिंग बैक कॉन्फिडेंस दैट वी कैन डू इट, दैट वी मस्ट डू इट, and together we will do it. Thank you very much for all your support.
starting off with the tremendous progress of UP, the crux of farmers, MSMEs, and workers being the core of economic development, the social infrastructure that's being done by the new government, and the economic development parameters in terms of Atmanirbhar Bharat and overall development. We thank you for this initiative of opening up this helpline, and we as in Noida SEZ will also strive our best to ensure that we tackle all the grievances of our exporters in the shortest possible time of 24 hours given to us. Now, I'd like to